Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language instructor. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. And basically, today exactly I have to discuss about the parts of speech. Already we have learned so many aspects of it. And today we are going to discuss about the interjection, the very essential topic of parts of speech. First of all, I would like to tell you about the definition of the interjection. What is the definition? But you are supposed to subscribe me and press the bell icon and keep watching my video till the end, so as you could be able to get the real fact of it and you could be able to learn something about the interjection. आज जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको इंटरजेक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा. सबसे पहले what is the definition of it? First of all, here I am going to start the definition. Listen me carefully and make the most of it. So here we go. A word which shows the feeling of sorrow and grief, or any sadness, or any kind of expression of sorrow and grief or happiness, that is considered to be the interjection. It's a definition, very simple, just like I have told you. If let's suppose your feeling, it's depend upon your feeling, that what feeling you are having. Sometimes you are very happy, sometimes you are not very happy. So it's mean that the feeling you are showing, that is considered to be the interjection. Just like I am very sad and sometimes I'm very happy. A word which shows the feeling of sorrow, grief or happiness or any joy, that is considered to be interjection. Got it? Now it's very easy definition. I think you can make plenty of definition of interjection. It's up to you. But you must be very good in English. If you are very good at English, so definitely you are going to make so many things in English. And you may never have any problem while being made sentences. तो बेसिकली मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने के दौरान हमें जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम काय के होते हैं. बेसिकली हमें ग्रामर के प्रॉब्लम होते हैं. ग्रामर के प्रॉब्लम क्यों होते हैं उसकी वजूहत भी आपको पता है. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं किस टॉपिक को, इंटरजेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं. और जैसे कि शॉर्टली बिफोर आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड. आई एम गोइंग टू टेल you how to make the sentences. In the end, I am going to I am gonna tell you all the thing regarding this particular topic which I have chosen today. I hope you are going to get it, and it's going to be very nice topic for rest of you guys who wanna learn about interjection. So I hope that you will learn it. So here we go. I would like to tell you that how you have to start making sentences, because making sentences is making sentences are considered to be the most important element of English grammar. If you are making perfect sentences, if you are making quality sentences, if you want to be a quality speaker, if you want to be a quality learner, if you want to be a quality writer, you will have to improve your grammar. And without parts of speech, you might not be able to improve your grammar. You will have to learn. So be careful and learn it, because it is a very important time for you, that you have to make the most of your opportunity which I have brought for you. So here we go. I am going to start how to make the sentences. Already I have told you about the definition. A word which shows a sudden feeling of joy, sorrow, grief or happiness, that is considered to be interjection. First sentence I am going to tell you that you have to make like that. If let's suppose कोई जो है बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है,
अफसोस कर रहा है कि अफसोस है यार उसके वालिद का इंतकाल हो गया। लेट्स सपोज ये जुमला बोला है उसने। अब इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? अफसोस की बात हो रही है, जॉय की बात भी होगी, यानी खुशी की बात भी होगी, और एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर जाने की बात भी होगी जिसमें बंदा बहुत एक्साइटेड हो जाए। तो हमें आज लिख के नहीं समझना, हमें समझना कैसे है, हमें बातों बातों में आपको समझाना है और आपने समझना है, और आपने समझना है और समझेंगे आप। मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बोर्ड पे, और बेसिकली आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। तो बेसिकली कभी मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे भी आपको लिख के समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली आप जब इतने इजी टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो बेसिकली आपको ज़रूरत ही नहीं है बोर्ड पे समझने की। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता कि मैं ओरल आपको समझाना चाहता कि यानी आप मुझसे ओरल समझेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि ओरल समझने में जितना मज़ा है उतना किसी चीज़ में नहीं है। देखें, अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अफसोस उसके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी उसके वालिद अब जिंदा नहीं है। तो अब इंग्लिश में अलाज हिज फादर हैज डाइड। अलाज, अलाज माने अफसोस, हिज फादर हैज डाइड, ये फर्स्ट सेंटेंस बना। तो ये कौन सी फीलिंग को शो करता है? इंटरजेक्शन। ये बहुत ज़्यादा रंज है, उसको दुख है, उसको शो करता है। तो इसका मतलब हो गया, ये जुमला किसका हो गया? इंटरजेक्शन का जुमला हो गया। नेक्स्ट जुमला, अगर मैं बात करूं, हमने जो है वो प्राइज जीता, हमने प्राइज जीता। अब एक्साइटमेंट में बड़ी खुशी, ओ हमने तो प्राइज जीत लिया, बड़ी खुशी की बात है। तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हुर्रा, वी हैव वॉन द प्राइज। हुर्रा, अब ये हुर्रा जो आ गया, हुर्रा एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। अच्छा, एक्साइटमेंट को पहले ग्रीफ को शो कर रहा था जो हमने बात की थी शॉर्टली बिफोर। अलाज, अलाज माने अफसोस, और हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इंटरजेक्शन की, वो बिल्कुल सही हमें बता रही है कि इसमें जो है वो ऐसे एलिमेंट है जो खुशी को जाहिर भी करते हैं, दुख को भी जाहिर करते हैं, एक्साइटमेंट को भी। अभी देखें, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये सेकंड मैंने आपको बताया, तो इसमें भी आपने इसको लर्न किया। इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ किसी को बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा कहने का मकसद है लाड प्यार करूँ और किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करूँ, और कोई बंदा जो है वो अपने टारगेट को पूरा कर ले और कोई किसी चीज़ में कामयाब हो जाए, और फिर मैं उसको शाबाशी दूं और बोलूं कि तुमने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है, शाबाश शाबाश, तुमने तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। अब अगर मैं ये बोलूं शाबाश तुमने ज़बरदस्त काम किया है, मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? अब ये भी शाबाश की जो बात हो रही है, ये भी हमें इंटरजेक्शन के बारे में बताता है। अब शाबाश क्या है? ब्रावो, यू हैव डन अ गुड जॉब। ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश। अब ये भी हमें शाबाश जो बात हो रही है, तो बेसिकली ये हमें हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं अगले बंदे के लिए, ओके, हमारी जो फीलिंग्स हैं दूसरे बंदे के लिए, हम उसको शाबाशी दे रहे हैं। ब्रावो, यू हैव डन अ गुड जॉब, शाबाश तुमने ज़बरदस्त काम किया। ब्रावो, यू हैव पास द एग्जाम, शाबाश तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच, तुमने मैच जीत लिया है। तो देखें कितने सेंटेंसेस बन गए इसके। तो बेसिकली आज हमें ये पता चला कि इंटरजेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक हमारा सेगमेंट था आज का, और इसमें कहने का मकसद ये है कि आदमी एक्साइटमेंट भी शो कर रहा है, अंदर की फीलिंग्स को शो कर रहा है, अंदर की जो उसकी फीलिंग्स हैं दूसरे के लिए कि तुमने क्या किया है, हमने क्या किया है, अपने बारे में भी बता रहा है, दूसरे के बारे में, अगर कोई दुख में है, रंज में है, उसके बारे में भी बता रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक मैं आपके लिए लाया। बेसिकली मैंने ये सोचा कि किसी तरह से इस टॉपिक को जो है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए इसको। तो मेरी प्रेजेंटेशन बेसिकली बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें। तो बेसिकली टुडे आई थिंक आई शुड गिव यू some sort of thing about interjection. That's why I brought to you this topic. I hope you would have definitely liked my topic today. और रैशनली मैं समझता हूँ, पर्सनली जो है ज़ाती मेरी जो बात है
कि आप लोग इन मेरे लेक्चर्स को बहुत सीरियस लेते होंगे डेफिनेटली, और मुझे यह यकीन है कि आप लोग इसको जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये मैंने 3 सेगमेंट आपको बताएं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वाओ, अब वाओ भी आ गया। ये वाओ का एलिमेंट भी हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? इंटरजेक्शन के बारे में बताता है। वाओ वाओ, योर कार इज़ वेरी नाइस। वाओ, योर टी शर्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वाओ, व्हाट अ वेदर इज़, द वेदर सीम्स टू बी प्लेजेंट। अब यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इंटरजेक्शन जो है उसमें जो एक्साइटमेंट की फीलिंग है, अफसोस की फीलिंग है, रंजो अलम की फीलिंग है, वो हमारे सामने आती है। तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, और आपने जो है ये वीडियो लाइक भी किया होगा, और डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, और हम दोबारा मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई channel because you are my YouTube family, so as you could be able to get further notification of mine, and keep watching my videos time to time, and so as you could be able to get further notification of my videos. Till then, bye bye, Allah Hafiz.